Good morning, dear students. I think today we are going to start with a new unit, that is final account of a manufacturing concern. I know all of you are very much familiar about the final account. Since last 2 years, you must have done and with lot of practice of final account. But one kind of feedback or experience, you can say, what I have got it regarding final account from majority of the students, that they give maximum time to the final account. They do practice of final account also. But when it comes to tally that sum in the exam, it is almost 90%, 95% students could not able to tally the question during the exam. Yes or no? How many of you have, had an experience during? Yes, sir. Why it is happening? Yes, sir. Why it is happening? I wanted to know that. And the same question when it comes to later on after the exam and it is appropriately done. Same question. We do the previous year questions. Our teachers solve it in the college. Our teachers solve it in class, and we could able to tally the same question again. Had you ever tried to identify what is the logic, what is the reason, where we are going wrong, why it is happening so? Sir, I think the balance sheet doesn't tally because of some adjustment issue. Kathy, I'm talking about tallying the balance sheet only. In many of the final account, ultimately it's the balance sheet which tallies. Okay. No, the last, the adjustments that are given below, उसमें कुछ problem हो जाता है. लेकिन वही क्वेश्चन वापस जब हम क्लास में करते हैं आफ्टर द एग्जाम और फॉर द नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट और यू योरसेल्फ विल ट्राई, वो टैली हो जाता है. क्यों? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराते हैं ना टीचर्स हमारे. जो आपने पढ़ा है, हमने तो नहीं पढ़ा 11th 12th कॉमर्स, बट आपने जरूर पढ़ा है. सर एग्जाम का प्रेशर होता हो. क्यों ऐसा क्यों होता है? Time it is due to calculation mistake. हाँ, क्यों होता है ड्यूरिंग एग्जाम? क्यों हो जाता है? तो कैलकुलेशन एरर होता है, एडजस्टमेंट समझ में नहीं आता है. व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज अभी आपका फाइनल अकाउंट एवरी एफए में है. आपने सोल ट्रेडर देखा, आपने पार्टनरशिप देखा, अभी मैन्युफैक्चरिंग देख रहे हैं, पार्टनर्स देखेंगे, फिर लिमिटेड कंपनी का फाइनल अकाउंट देखेंगे. मैं ऐसे सारे फाइनल अकाउंट बोल रहा हूँ which will be totally new. You are going to face the final account of insurance company, which is totally new. You are going to face the final account of bank, which will be totally new. You are going to face the final account of cooperative society, which will be totally new. You are going to face the final account of NBFC, right? It will be totally new. अभी इतने सारे फाइनल अकाउंट जिंदगी में आने वाले हैं, और अगर हम उसी ट्रेंड पे रहेंगे और बाद में हम लोग का एक एटीट्यूड हो जाता है कि भाई फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हमें टैली नहीं करना, खाली पोस्टिंग करके आ जाए. क्यों? वो तो अपना टैली होगा भी नहीं, दूसरे क्वेश्चन को भी डिस्टर्ब करेगा. फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है तो सबसे लास्ट में लेने का. These are the common errors what any student does during the exam. Yes or no? क्योंकि आपने पहले से माइंडसेट बना रखा है. Do you agree with me or not? Might be here आपके Yes. ऐसा बताया है या ऐसा कन्वर्सेशन होता है या उनके एक्सपीरियंस जब उन लोग हमारे साथ शेयर करते हैं तो हमें भी लगता है कि सही बोला जा रहा है. दिस इज टोटली रॉन्ग अप्रोच एंड एटीट्यूड. ठीक है, तो कोई भी फाइनल अकाउंट हो, मैंने इतने सारे फाइनल अकाउंट की बात करी. Every final account they will always give you what? Trial balance, and they will always give you certain HR. Now try to understand the logic of final account. What is final account? And it is very, very much crucial and important for all the company or anyone, any businesses which we operate or which we run. That we want to know
know at the end of the year what is the performance. We want to evaluate whether my business is earning profit or it is incurring losses, or what is the position, how much assets we have, how much liability we have. Yes or no? हर कोई जानने की कोशिश करता है. आप आपके इवैल्यूएट करते हैं, हम आपको इवैल्यूएट करते हैं. हर एक सेमेस्टर एंड में या ईयर एंड में हम देखते हैं कि हमारा बच्चा केपेबल है कि नहीं एफवाई से एसवाई में जाने के लिए, एसवाई से टीवाई में जाने के लिए. हाँ या ना? दैट इज बस. और उसके लिए क्या किया जाता है? आपका एग्जाम किया जाता है. हाँ या ना? हम सिर्फ पढ़ाते रहेंगे एग्जाम नहीं. यस सर. तो इवैल्यूएशन हो पाएगा बच्चों का? हम सेग्रीगेट कर पाएंगे किसने समझा, किस कौन उसको इम्प्लीमेंट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा. सिमिलरली इन द बिजनेस आल्सो इट इज वेरी इंटीग्रल प्रोसेस. यू नो, व्हेन आई हैव चॉक डाउन द डेफिनेशन एंड आई हैव गिवन यू द प्रोसेसेस. मैंने क्या क्या प्रोसेस बताया था आप लोगों को? व्हाट वाज द प्रोसेसेस? I taught you classification process, I taught you recording process, I taught you the summarizing process, but last not the least मैंने finalization process बताया. याद है? इसके बगैर तब तक आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ जब तक आपने फाइनलाइज नहीं करी है पूरे बुक. And why we do the finalization? So that we should get to know whether my business is making profit or it is incurring losses. Okay, and what is the position of my business? Assets and liability position क्या है? Whether assets is more, whether it is selling or what kind of fixed liability we have, what kind of current liability we have, what kind of fixed asset we have, what kind of current assets we have, what kind of fictitious asset we have. Yes or no? So there will be certain guidelines for any of the final account. कभी भी क्वेश्चन फाइनल अकाउंट का आए, ये 6 स्टेप को याद रखना आप लोग का. कोई एरर नहीं होगा. ठीक है? So give the heading as final account on your notebook and take down these points. हेडिंग लिखो फाइनल अकाउंट और ये सारे पॉइंट्स लिखना चालू करो. फर्स्ट पॉइंट में लिखो गिवन इन द क्वेश्चन. फर्स्ट हेडिंग दो गिवन इन द क्वेश्चन. उसके नीचे लिखो ट्रायल बैलेंस. Sir, can you repeat first point? First problem. On the top, write down final account. Don't give any heading. It is common for all. Right? जैसे मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ फाइनल अकाउंट ऑफ, जस्ट डोंट राइट फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरर. इसके बाद मैं सिखाऊंगा फाइनल अकाउंट ऑफ डिपार्टमेंट. इसके बाद आपके लाइफ में आएगा फाइनल अकाउंट ऑफ ब्रांड. इसके बाद आपके लाइफ में सो मेनी फाइनल अकाउंट. फाइनल अकाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, फाइनल अकाउंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी. सबके अलग अलग होते हैं. फाइनल अकाउंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, फाइनल अकाउंट ऑफ एनबीएफसी, ये सारे फाइनल अकाउंट ऑफ एलपीपी सारे आएंगे आपके लाइफ में. ये जो 7 डिफरेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप पढ़ोगे ना, उसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने को आएंगी. इज दिस क्लियर? और हर एक का फंडामेंटल कॉमन रहेगा, बेस कॉमन रहेगा, बेसिक्स कॉमन रहेगा. क्या? जो मैं अभी लिखा रहा हूँ. ठीक है? मैं लिखो पहला गिवन इन द क्वेश्चन. क्या क्या दिया रहेगा किसी भी फाइनल अकाउंट? फर्स्ट पॉइंट ट्रायल बैलेंस एंड सेकेंड पॉइंट एडजस्टमेंट. First point trial balance, and second point adjustment. Second heading though, required to prepare.
required to prepare. Now don't write, I am just explaining. जैसे आपने फर्स्ट ईयर FIJC में बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट, राइट? SY बैक में SYJC में जब आप पहुंच गए तो आपने ट्रेडिंग बनाया, P&L बनाया, P&L अप्रोप्रिएशन बनाया एंड फिर बैलेंस शीट बनाया, यस और नो? तो बेसिक 2-3 अकाउंट है वो जो कॉमन ही रहेगा, या तो अकाउंट बनेगा नहीं तो स्टेटमेंट बनेगा. सर एक्सक्यूज मी, बोलो. मैंने एक्चुअली नॉर्मल लाइक बोर्ड नहीं किया, मैंने कैम्ब्रिज बोर्ड किया है, तो डिफरेंट था, तो मैंने वर्टिकल अकाउंट सब कुछ किया है. इज कोई दैट बात ओके? नहीं, बट आपको FY बैक के लिए तो हॉरिजॉन्टल सीखना ही पड़ेगा, ओके सर. है ना? Whatever is there in the syllabus we need to learn, and then subsequently, as I told earlier also, whatever we are learning, it is totally outdated. When you reach to company final account, it will be in vertical form. When you reach to your banking final account, it will be in vertical form. When we'll reach to इंश्योरेंस कंपनी फाइनल अकाउंट, इट विल बी इन वर्टिकल फॉर्म. हर एक वर्टिकल में ही है, आप चिंता मत करो, बट बेस अभी से समझाना पड़ेगा. जैसे अभी मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग सिखाया था, उसके बाद मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर वर्टिकल में सिखाया तो कोई प्रॉब्लम था क्या? लेट मी एक्सप्लेन. नो सर. दिस एज अरबी, ये अपना हॉरिजॉन्टल सिखाया मैंने, ठीक है बच्चों को? यस और नो? जो उन्होंने FIJC SYJC में सीखा था उसी को मैंने वर्टिकली लिखा, कोई प्रॉब्लम आया क्या? नहीं ना. दिस इज ओनली डिफरेंट वे ऑफ प्रेजेंटेशन. अगर हमने वर्टिकल सीखा उसको हॉरिजॉन्टल करेंगे, सिंपल है. बट आज के सिलेबस में जो है हमें वैसा ही जाना पड़ेगा ना. ओके. This is different way of presenting our books. अंडरस्टैंडिंग में इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए. अंडरस्टैंडिंग में इसकी वजह से या उनके कंसेप्ट में इसकी वजह से कोई चेंजेस नहीं आते. इज दिस क्लियर? Kathy, I hope I have answered your query. Yes sir, thank you. So there might be some additional or some subtraction of the account, but one particular part is going to record your revenue aspect. Another particular statement is going to record your capital aspect. Okay. तो जो हम बैलेंस शीट स्टेटमेंट बोलते हैं और इधर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस. तो आज के डेट में मैं एक एडिशनल अकाउंट लिखाऊंगा और उस पर बहुत ज्यादा फोकस करना है आपको. तो ओनली स्ट्राइक करके लिख देना, राइट? इसमें अभी पूछा जाएगा, बट नेक्स्ट जब भी हम लोग डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट बनाएंगे देन मैन्युफैक्चरिंग विल नॉट कम. ठीक है, बट अभी के अकाउंट में आएगा. फर्स्ट लिखो रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, तो स्टार दे देना ओनली फॉर दिस सेमेस्टर और दिस टॉपिक, अदरवाइज रेस्ट ऑल आर कॉमन. नेक्स्ट लिखो ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट. उसके नेक्स्ट लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. उसके नीचे लिखो बैलेंस शीट स्टेटमेंट, बैलेंस शीट स्टेटमेंट. क्लियर है? क्लियर है सबको? ठीक. So these are the things. Next heading दो, steps for solving the question. Steps for solving the question.
Now, these 6 steps will be common, irrespective of final account. Might be bank, might be insurance, might be electricity, might be NBFC. कुछ भी हो, ये steps common रहेंगे. Okay. First step. Read the trial balance. Read the trial balance. And put your remarks where to transfer these items. Where to transfer these items. ब्रैकेट में लिखो trial balance items will have only one effect. Only one effect. Debit balances. Debit balances will transfer either to manufacturing account, comma, trading account, comma, P&L account, debit side, or on the asset side, or on the asset side. Whereas credit balances of trial balance or credit items of trial balance will transfer to, I hope you can write with your own. क्या लिखेंगे आप लोग? क्रेडिट आइटम कहाँ ट्रांसफर होगा? कोई बता दो मुझे. Will transfer to some of you should tell me now. Credit items of Sir, trial. can you repeat the step again, please? Debit balances of trial balance will be transferred. Debit side of manufacturing account, trading account, P&L account, और on asset side. ठीक है. उसी तरह क्रेडिट बैलेंस कहाँ ट्रांसफर हो? लाइबिलिटी एंड मैन्युफैक्चरर अकाउंट का क्रेडिट साइड, एंड ट्रेडिंग अकाउंट. हाँ, तो वैसा ही लिखना है. वो मैं अभी वो सेंटेंस मैं नहीं लिखाऊंगा. That you have to do with your own, right? Complete the sentence. So credit items either will be manufacturing credit, or will be in trading credit, or will be in P&L credit, or liability side of balance. Is this clear? But इसके एक ही इफेक्ट हो. क्लियर है सबको? यस. Step 2. Step 2. Read all adjustment carefully. Read all adjustment carefully. Read all adjustment carefully. Do working note if required. Do working note if required. Put adjustment marking
on trial balance items, put adjustment marking on trial balance items. Full stop. Bracket में लिखो each and every adjustment will have two effects: debit equal and corresponding credit equal and corresponding credit. समझ में आया? एनी डाउट? और ये देखना, कोई भी टीचर अगर सॉल्व करता है फाइनल अकाउंट का सम, वो यही फॉलो करेगा, तो कभी भी आपके मेथोडोलॉजी को फॉलो नहीं करता। अब मैं बताता हूँ आप लोग क्या क्या रख सकते हो। आप पहले जाके फॉर्मेट खींच देते हो, फिर जब भी आया तभी ट्रायल बैलेंस के आइटम को पोस्टिंग करते हो, जब भी चाहा तभी एडजस्टमेंट देते हो, फिर कुछ समझ में नहीं आता है कि एडजस्टमेंट छोड़ देते हो। ऐसा सब नहीं होना चाहिए। यू फॉलो दिस स्टेप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनी को भी फाइनलाइजेशन के लिए 6 से 9 महीने का टाइम मिलता है। साल भर उन लोग बिजनेस करते हैं, 6 महीने तक उनको रिटर्न फाइल करने के लिए दे, बहुत टाइम देते हैं, ताकि वो स्लोली एंड स्टडीली मैनर में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन कर पाए और अप्रोप्रिएट प्रॉफिट लाए, so that there is no chances of any errors, because it is very valuable for all the stakeholders. Is this clear? ठीक है, so step 2 is over. Go for step 3. Excuse me, sir. Yes, madam. Sir, do we will have any extra account in this final account in this year, or only we will get sufficient with these 3 accounts, like trading, P&L or a balance sheet? मैंने लिखा है ना, सबसे पहले स्ट्राइक करके क्या लिखा है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। हाँ। सबसे No, sir, I was asking. That's what I told you. तो ऐसा हो गया, रामायण खत्म हो गई, तुम बोल रही हो सीता कौन थी, तो राम की माता। पहला पॉइंट मैंने वही लिखाया था। Without confusion, I have thought. कोई बात नहीं, मैंने पहला पॉइंट इसके लिए वो लिखाया था, इट इज एन एडिशनल अकाउंट, I will give you as an assignment also. Okay. Next, step 3. Prepare the required format. Prepare the required format considering debit balances of trial balance and their adjustment effects. म्हणजे ट्रेडिंग कितने का बनेगा वो कौन डिसाइड करेगा? मैंने कितना टीडी किया है ना? 6 लाइन का बनेगा, 8 लाइन का बनेगा, 12 लाइन का बनेगा, ये सुनो, वो कौन से साइड से देखना है? क्रेडिट बैलेंस से नहीं देखना है, डेबिट बैलेंस से देखना है। मोस्ट ऑफ द टाइम डेबिट साइड ज्यादा आपको आइटम्स रहेंगे, ठीक है? ऐसा ही होता है, ऑलवेज इनकम्स आर लो, वेरी रेयर। जैसे मैं सिर्फ कॉलेज से कमाता हूँ या यूनिवर्सिटी से कमाता हूँ या फिर सर्टेन इन्वेस्टमेंट से कमाता हूँ, बट खर्चा करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है। वैसे कंपनी के साथ भी होता है, कमाता सिर्फ सेल्स है और खर्चे के बहुत सारे ऑप्शंस रहते। ऑलवेज डेबिट कंसीडर करने का, क्रेडिट आइटम्स कंसीडर नहीं करने का फॉर्मेटिंग के लिए। नेक्स्ट, दिस वाज स्टेप नंबर 3, if I'm not wrong. Step 4. Step
Do the posting of trial balance items. Step number 4. Do the posting of trial balance items to the respective ledger account. To the respective ledger account or in balance sheet statement. Or in balance sheet statement. Clear है? Next, step 5. Do the posting of adjustments and their effect to the respective items and take their total of inner column. सर रिपीट करना. याद थोड़ी है यार, क्या बोल रहा था मैं, भूल गया. Do the posting of adjustment and their yes, याद आ गया. Do the posting of adjustment to the respective items and take their inner columns total into outer column. Inner columns total into outer column. ठीक है? I think I have completed 5 steps. सही है? yes sir. 6th step and the last one. Do the closing. Do the closing. Close manufacturing account. Transfer the balance into trading account. Close manufacturing account. Transfer the balance into trading account. अच्छा, ट्रांसफर द बैलेंस के ब्रैकेट में लिखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ट्रांसफर द बैलेंस, बैलेंस का नाम क्या बोलते हैं इसको? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है. क्लोज ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रांसफर द बैलेंस, ब्रैकेट में लिखो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस. बराबर है? ट्रांसफर द बैलेंस, ब्रैकेट में लिखो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस. into profit and loss account. Into profit and loss account. Close profit and loss account. Transfer the balance. Close profit and loss account. Transfer the balance. Again bracket में लिखो net profit और net loss. Net profit or net loss. Into balance sheet statement. Into balance sheet statement. Which must tally. Which must tally. Okay. Is this clear? मैंने कुछ नया चीज सिखाया आप लोग को? नहीं, सेम चीज सिखाया बट इन अ सिस्टमैटिक मैनर. अगर आप ऐसा करेंगे, किसी भी टाइप का फाइनल अकाउंट हो वो टैली होना ही होना.
आपको कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। लाइक दिस इज द क्वेश्चन। मैन्युफैक्चरिंग बनाया, उसका जो बैलेंस था, क्या है बैलेंस? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, है ना? वो ट्रांसफर किधर किया? ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग का ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर किया? पीएनएल में। पीएनएल का नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर किया? बैलेंस शीट में। ठीक है, टैली होना ही होना है। तो हमने एक नया चीज सीखना है, क्या? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरर को। तो अभी तक आप क्या कर रहे थे? ट्रेडर का बिजनेस बना रहे थे, फाइनल कर रहे थे। ट्रेडर म्हणजे जो बाय करके बेचता है। अब आप मैन्युफैक्चरर का कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरर मतलब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स ट्रांसफर कर रहा है। तो आज का जो होमवर्क रहेगा आपका, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट रहेगा, जो आपके लिए नया है। ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट आपको आता है, आपने पिछले 2 साल प्रैक्टिस करी है। मुझे ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट चाहिए आपसे प्रैक्टिस करनी। ओके, इसमें आप रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड को या तो ऐसे भी लिख सकते हो। अगर मैन्युफैक्चरिंग है मतलब स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होगी? रॉ मटेरियल से स्टार्ट होगी, है कि नहीं? रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस। मैंने कितने टाइप के इन्वेंट्री सिखाए थे आपको? 3 टाइप के। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होता है? ट्रेडिंग से। ट्रेडिंग मतलब बना बना। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ कैंटीन। कैंटीन वाला फ्राइड राइस भी बनाता है और कैंटीन वाला कोक भी बेचता है। जो फ्राइड राइस है वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है। राइस को मैन्युफैक्चर करके फ्राइड राइस बना के वो बेचता है, ये समझ। बट अगर वो कोक बेचता है मतलब वो ट्रेडिंग करता है, बना बनाया कोक खरीदता है और वही आपको बेचता है। अंडरस्टूड व्हाट इज द डिफरेंस? तो आज जो आप कर रहे हो वो कैंटीन टाइप का मैन्युफैक्चरर है, यानी वो मैन्युफैक्चर भी कर सकता है, वो ट्रेडिंग भी कर सकता है। इसलिए आपको दोनों लेजर्स बनाने हैं, मैन्युफैक्चरिंग की भी लेजर बनानी है और ट्रेडिंग की भी लेजर बनानी है। ओके, लेजर मीन्स डेबिट एंड क्रेडिट, राइट? लेफ्ट हैंड साइड डेबिट एंड राइट हैंड साइड क्रेडिट. Statement is just reverse. Assets are showing debit balances, whereas liabilities are showing credit balances. Yes or no? यहाँ पे इसलिए बैलेंस शीट स्टेटमेंट कहते हैं, उसको लेजर नहीं कहते। लेजर में मतलब डेबिट क्रेडिट साइड होता है, बैलेंस शीट में ऐसा डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। असेट्स आर शोइंग डेबिट बैलेंसेस एंड लायबिलिटीज आर शोइंग क्रेडिट बैलेंस। क्लियर है? तो आज का असाइनमेंट क्या है आपके लिए? ऑफ कोर्स ये 6 स्टेप्स जो आपने याद रखनी है, और मैन्युफैक्चरिंग लेजर 1-2 बार लिख के लाना है तो आपको समझ में आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह आपको आता है, वो कहाँ से स्टार्ट होगा? फिनिश गुड से स्टार्ट होगा। फिर ट्रेडिंग भी आती है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस भी आती है आपको। हाँ, एक चीज याद रखना, पीएनएल को सेग्रीगेट कर देना। वो जो अभी एक बच्ची बोल रही थी ना, वर्टिकल, उसमें बहुत काम आएगा। ऑफिस के खर्चे को अलग लिखना, राइट? फाइनेंशियल खर्चे को अलग लिखना, सेलिंग खर्चे को अलग लिखना। ठीक है, कोई लॉजिक है, मैंने ऐसे अलग सिखाया। इट हैज लॉट ऑफ मीनिंग विच विल हेल्प यू इन वर्टिकल स्टेटमेंट, जो कैम्ब्रिज बोर्ड वाली अभी बच्ची बोल रही थी। एंड फाइनली द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी अलग अलग लिखना, फिक्स असेट अलग लिखना, राइट? एंड करंट असेट एंड फिक्टिशियस असेट अलग लिखना। सिमिलरली फिक्स लायबिलिटी अलग लिखना, राइट? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी अलग लिखना। वही चीज है, लेकिन है ना डिफरेंट वे यू हैव टू राइट। और 1-2 बार लिखोगे तो याद रहेगा कि करंट एसेट में क्या लिखना है और फिक्स एसेट में क्या लिखना है। इज दिस क्लियर? So now we'll be meeting next Yes, sir. Can you show Monday. the slide of manufacturing? है ना आपके बुक में देखो ना, बुक में देखो सब है। I don't have time. Happy Navratri. See you on Monday with all these assignments. Okay. सर आप C1 में यूनिट 1 एंड फाइनल अकाउंट्स, राइट? जी जी जी। Okay. चलो। Happy Dussehra. Yes, thank you, sir. Tomorrow there will be holiday. See you on Monday.
Thank you, sir. Thank you, sir. Complete all this assignment. Thank you, sir. I'll take assignment on Monday. Okay, sir. All the time.